Hello students, this is Sneha teacher from Empower Tutorials, and today we are going to discuss about arithmetic progression. And in this arithmetic progression we will see some examples, formula, how to check the given sequence is an arithmetic progression or not. But before going to start with our topic, first we will see some real life examples, and when we will see some real life examples regarding any concept, so we will understand that concept very perfect. Okay, so here are some real life examples related to our concept. So you can see first example is seats in a stadium or an auditorium. So when we will see seats in a stadium or an auditorium, so we will see some pattern like this. Now the next one is pyramid like patterns where objects are increasing or decreasing in a constant manner. So here is the structure of pyramid. So you can see there is increasing or decreasing pattern with a constant manner. Now the next one is a stacking cups, chairs and balls. So you can see this figure, and from this you can identify that there is some particular pattern in all these images. Now we will see what is a sequence, because when we are going to learn about arithmetic progression, it is a type of sequence. But before going to start with that particular point, first we will see what is actually sequence. So a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like the natural numbers is called a sequence. So अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस डेफिनेशन से जो भी कोई सीक्वेंस होता है उसमें जो कोई नंबर्स है वो एक डेफाइनेट ऑर्डर में क्या होते हैं, सेट किए होते हैं, और एक डेफाइनेट ऑर्डर होती है उसमें. तो इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं नंबर्स के, जहाँ वो इस प्रकार अरेंज किए गए होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस. नाउ इन अ सीक्वेंस अ पर्टिकुलर नंबर इज रिटन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीक्वेंस. यहाँ जो है पर्टिकुलर नंबर रिटन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. सो जब भी कोई हम कौन सा भी सीक्वेंस लिखते हैं तो हर एक नंबर का जो पोजीशन है वो फिक्स होता है, और अकॉर्डिंग टू द रूल, जो कोई रूल हम उस सीक्वेंस लिखने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस रूल के हिसाब से ही वो क्या होना चाहिए, वो जो सारे नंबर्स है वो उस मैनर में, उस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से क्या होने चाहिए, अरेंज होने चाहिए उसके पर्टिकुलर पोजीशन पे. सो हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंसेस, and when we will see this type of examples, we can also learn what is actual arithmetic progression. So now see, here is the first sequence 2, 4, 8, 16, 32. So we can see if we will get any such type of sequence, so we can again identify the next few terms of given sequence. So how to identify or how to get the next term of the given sequence, that is first we have to understand how these terms or how these numbers are arranged in a given sequence. So in this first example you can see 2, 4, 8. These numbers we can write in the form, first number is 2, then next number 4 we can write it is as 2 into 2. Now the next one is 8, so you can write it as 4 into 2. Again 16 can be written as 8 into 2. So here you can see that is the next number we can find with the help of प्रीवियस नंबर. सो प्रीवियस नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन नेक्स्ट नंबर हमें क्या होता है, मिल जाता है इस सीक्वेंस में. सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें नंबर्स दिए गए हैं 1, 4, 7, 10 एंड 30. एंड इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, नंबर्स फाइंड कर सकते हो. सो अगर नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है इस सीक्वेंस के लिए, तो हमें जानना चाहिए कि ये नंबर्स किस प्रकार अरेंज किए गए हैं. तो फर्स्ट नंबर है 1 और नेक्स्ट नंबर है 4. तो हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो जो नेक्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर में 3 मिला के हमें मिलता है. सो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर दैट इज, ये जो नंबर है हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3. 4 को हमने लिख लिया 1 + 3. नाउ नेक्स्ट नंबर है 7. सो उसके पहले जो नंबर है 4, तो उसमें 3 ऐड करके हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दैट इज 4 + 3. In this way we can again find next few numbers from the given sequence. Now again the next example is sequence in which 3, 3, 3, that is 3 is constantly repeating. So 3 it is also called as a constant sequence. और यहाँ जो है, जो नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमें खाली 0 ऐड करना है. So we can write it as 3 + 0 for the next number. First is 3, 3 + 0, again 3 + 0, and in this way. So in this way I think you understood how we can write any sequence and according to the different rules. Now the next one is 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube. So यहाँ क्या किया गया है कि जो नेचुरल नंबर्स है तो
तो वो जो नंबर्स है उनके क्यूब्स के हिसाब से हमने वो क्या किया है, सीक्वेंस तैयार किया गया। नाउ नेक्स्ट वन इज -1, -1.5, -2, -2.5। तो इसके लिए भी एक रूल है, तो उस रूल को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला जो नंबर है हमारा वो है -1, तो -1 में हम जब ऐड करते हैं -0.5, so here we will get -1.5. Similarly, if you want to get next number, that is -2, so what we have to do, we have to add -0.5 to -1.5. So here I will write the next term like -1.5 plus -0.5, that is equal to -2. So in this way we can again get next terms for this sequence. Now इसके हिसाब से अगर हम कौन से भी रूल के हिसाब से अगर कौन सा भी सीक्वेंस लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ टर्म्स इस सीक्वेंस में दिए गए हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, दैट हमें रिलेशन जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरफ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तो इस जो पहले जो हमने सीक्वेंस देखे हैं तो उनका भी हमें इसमें हेल्प लेना है, क्योंकि जो हमने अभी सीक्वेंस देखे हैं उनमें कुछ सीक्वेंस ऐसे थे जिनमें हमने कुछ नेक्स्ट टर्म मिलाने के लिए हमने कुछ टर्म से मल्टीप्लाई किया फिक्स टर्म से, नेक्स्ट जो है उनमें कुछ टर्म्स ऐड किए, जो कुछ नंबर था उनको हमने ऐड करके नेक्स्ट टर्म्स निकाले, कुछ नंबर से उनमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए था, और नेक्स्ट जो है किसी नंबर्स के क्यूब्स हमने देखे, और जो लास्ट वाला सीक्वेंस था उसमें हमने देखी कि हमने एक टर्म जो है फिक्स टर्म हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें हमें क्या मिल गया, नेक्स्ट टर्म हमें मिल गया। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए हमें ऐसे सीक्वेंस लेने हैं कि जिन सीक्वेंस में हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिल सकता है, आइदर वी हैव टू ऐड सम फिक्स टर्म, आइदर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सम फिक्स टर्म, or we have to keep that term as it is for next few positions. So here are some examples. So if we will consider this example 100, 70, 40 and 10. So obviously as we have done for some previous sequences, for this sequence also we can write, that is this sequence we can rewrite as the first term is 100. So second term we will get when we will subtract number 30 from this 100. So we can write it as 100 minus 30. अगेन इफ यू वांट टू फाइंड थर्ड टर्म, सो जो सेकेंड टर्म है उसमें से हमें क्या करना है, 30 सब्ट्रैक्ट करना है। सो जो नेक्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं 70 माइनस 30। और अगर आपने देखा होगा कि ये जो टर्म्स है हम अगेन रीराइट कर सकते हैं, देखो कैसे, 100 माइनस 30, और अगर हमने ये 100 जो है वो फिक्स रखा तो थर्ड टर्म आपको ऐसे भी मिल सकता है 100 माइनस 2 टाइम्स 30, बिकॉज 2 टाइम्स 30 मीन्स 60, 2 टाइम्स 30 मीन्स 60, सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 40। और नेक्स्ट जो है उसको भी हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 टाइम्स 30, दैट इज 3 इंटू 30 90, सो 100 में से 90 गया तो हमें मिलेगा 10। सो इस हिसाब से क्या किया हमने, पहला जो सीक्वेंस है उसको देखा तो उसमें क्या था, जो डिफरेंस है वो हर जगह जो है वो कांस्टेंट है, तो ये जो डिफरेंस है वो हर नंबर में और हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तभी उस सीक्वेंस को, तभी उस प्रोग्रेशन को हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल इज -7 -4 -1 and 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला नंबर जो है वो -7 है, और जो नेक्स्ट टर्म है हम मिला सकते हैं -7 + 3। सो इस सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं -7, देन नेक्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं -7 + 3, उसके बाद जो है -1 तो उसको हम लिख सकते हैं -7 + 2 times 3. So in this way we can again find the next few terms of this sequence. Now again जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो जो है वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, 4 नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो 0 है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 0, then 4 + 2 times 0 and so on. So in this way we have seen some examples related to our arithmetic progression. Now actually we will see how to write the general form of arithmetic progression, its perfect definition, and we will see how to find the difference between two consecutive terms and which is the formula we are going to use to find that difference. Okay, so let us denote the first term of an AP by A1, second term of that sequence by A2 and so on. The end term we can denote by this to this term we will denote by an. So in this way अगर हमने कौन सा भी सीक्वेंस ले लिया तो उसके हर एक टर्म को हम क्या कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन दे सकते हैं, उसको एक सिंबल दे सकते हैं। सो इन दिस वे जो टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के उसको हम A1, A2, A3 एंड सो ऑन एंड n ऐसे हम क्या करेंगे, उसको नोटिफिकेशन देंगे।
और इन दिस वे द कॉमन डिफरेंस जो है वो डी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देन AP बिकम्स A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू An. सो नाउ जैसे कि हमने पहले सारे एग्जांपल्स देखे, उनमें हमने देखा कि कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमने यूज किया कि सेकेंड जो टर्म होता है सक्सेसिव टर्म, उससे प्रीवियस टर्म हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो डिफरेंस मिल जाता है. अगेन हमें चेक करना है कि नेक्स्ट जो सक्सेसिव टर्म है उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या है, और इसके हिसाब से जो फर्स्ट फ्यू टर्म्स है उनमें से हम क्या निकालेंगे, उनके जो 2 सक्सेसिव टर्म्स है उनसे हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. और अगर ये डिफरेंस अगर कांस्टेंट रह गया तभी उस सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये जो डिफरेंस हम निकालने वाले हैं तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज AK+1 माइनस AK इज इक्वल टू डी. ये क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला है जो कि हम हर एक गिवन सीक्वेंस के टर्म्स में से डिफरेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. तो यहाँ AK+1 जो है वो नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म्स के लिए हम यूज करेंगे, और AK जो है वो प्रीवियस टर्म के लिए यूज करेंगे. जैसे कि हमने सीक्वेंस देखा था 100, देन 70, देन 40, देन 10, इन दिस वे. तो इसमें कौन सा भी नेक्स्ट टर्म आप जो प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे. और इन दिस इस सीक्वेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म जो है 70 उसको हम लिखेंगे A2, नेक्स्ट जो टर्म है 40 उसको हम लिखेंगे A3. सो इन दिस वे you can write for each term of the given sequence. Now, so in this way, you can see every arithmetic progression can be written in the form of A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So उसका जनरल टर्म हम लिख सकते हैं A plus N D. So N जो है this belongs to the set of natural numbers. So represents an arithmetic progression where A is the first term. A जो क्या है, फर्स्ट टर्म. A means क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 भी बोल सकते हैं बिकॉज जो हमने नंबरिंग किया है नंबर्स को, टर्म्स को, तो उसको हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू A1, देन A2, देन A3 एंड सो ऑन अप टू N. So in this way you can write each term of the given arithmetic progression where common difference is what, D. And this is the general form of an arithmetic progression. ये जो हमने देखा है A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये जो है वो जो है general form of arithmetic progression. So in this way you can write any arithmetic progression with the help of this general form. Now the next point is we are going to learn what is a finite arithmetic progression and what is infinite arithmetic progression. आपको ये words देख के पता चल गया होगा कि finite और infinite क्या है. हमें पता है कि फाइनाइट जो सीक्वेंस होता है उसमें जो टर्म्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 4 to 50. और जब भी कोई हम फाइनाइट सीक्वेंस का या फाइनाइट सेट का सोचते हैं तभी हमें पता है कि उसको एक लिमिटेशन होता है. सो जैसे कि यहाँ हमने इवन नेचुरल नंबर्स का हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ हमें जो नंबर्स लेने हैं, जो कोई टर्म्स लेने हैं वो हमें 4 से स्टार्ट करने हैं और 50 तक ही हमें वो नंबर्स लेने हैं, और वो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जो हमारा रूल है वो सेटिस्फाई कर सके. तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 4, 6, 8, 50. सो दीज आर ऑल इवन नेचुरल नंबर्स from 4 to 50 and we can count these, that is 1, then 2, 3 and up to so on. So in this way you can count these numbers or you can count the number of terms given in the sequence. So this is called as a finite arithmetic progression. Now the next one is a infinite arithmetic progression. The word itself tells us the meaning of that infinite arithmetic progression. So इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5. और इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि जिसमें जो टर्म्स है हम वो काउंट नहीं कर सकते. एक फिक्स्ड कुछ लिमिट तक हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो जो नंबर्स है वो बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन. सो इन दिस वे इफ यू विल सी दिस एग्जाम्पल positive multiples of 5. So we can write positive multiples of 5, that is 5, 10, 20, 25. इसके बाद हम लिख सकते हैं 30, 35, 40. अगर आप लिखते जाओगे तो पूरा दिन भी हमें कम हो जाएगा ये नंबर्स लिखने के लिए. सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस और दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So in this part we have seen what is arithmetic progression, what is finite arithmetic progression, what is infinite arithmetic progression. Also we have seen some real life examples and through them we have understood what is actual arithmetic progression. And now we are going to learn
if any sequence is given, then we have to check that given sequence is an arithmetic progression or not, and with the help of that sequence, or if it is able to identify the rule given, or if we are able to identify the relation between any two consecutive numbers, then we can write few terms from that arithmetic progression, or few terms for that given sequence. So here I have taken one example, that is a sequence a square, a cube, a4 and so on. आपको पता है, इसके बाद आप टर्म्स लिख सकते हो a raised to 5, a raised to 6, बट जरूरी नहीं कि एवरी सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमने रूल क्या देखा है, कौन से भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है तो उसमें जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट दैट सीक्वेंस, थ्रू आउट दैट प्रोग्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. सो यहाँ हम चेक करेंगे कि जो गिवन हमें ये दिया है सीक्वेंस, तो हमें चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. तो एज हमने प्रीवियस फ्यू एग्जांपल्स में देखा कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो सक्सेसिव टर्म है उसका डिफरेंस हम उसके प्रीवियस टर्म से निकालते. तो हम इधर लिखेंगे, फर्स्ट हमें उसके टर्म्स लिखने हैं. सो a1 है हमारा a, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस. देन नेक्स्ट होगा a2 क्या है हमारा a स्क्वायर है. नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, a क्यूब, सॉरी a3 जो है, सो a3 जो है हमारा क्या है a क्यूब. सो इन दिस वे यू कैन राइट दिस नंबर्स और यू कैन राइट द टर्म्स. When we are talking about numbers given in the arithmetic progression, so for each term we will call as a term. So हर एक जो नंबर है वो क्या है, टर्म है. तो अभी हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस निकालेंगे टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो है. सो a2 माइनस a1, सो यहाँ a2 है हमारा a स्क्वेयर और हमारा a1 जो है a. तो हम कैसे निकालेंगे, a स्क्वेयर माइनस a जो है वो कॉमन है, तो a इंटू ब्रैकेट a माइनस 1. ओके, सिमिलरली वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टू टर्म्स, दैट इज a3 माइनस a2. सो यहाँ जो है हम लिखेंगे a3 है वो जो हमारा है a क्यूब माइनस a2 है वो हमारा है a स्क्वेयर. तो हमें पता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, a स्क्वेयर. सो हम लिखेंगे a स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट a माइनस 1. हम नेक्स्ट टर्म के लिए निकालेंगे, दैट इज a4 माइनस a3. सो इसमें क्या है, a4 क्या है हमारा टर्म, a रेज टू 4 माइनस a3 जो है वो हमारा है a क्यूब. सो यहाँ हम निकालेंगे इसका डिफरेंस, दैट इज इसमें कॉमन है a क्यूब. अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन है a क्यूब. सो a क्यूब माइनस a क्यूब इंटू ब्रैकेट a माइनस 1. अगर आप ये टर्म्स देखोगे जो हमने टू सक्सेसिव टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो निकाला है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है डिफरेंस वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है. सो अगर ये डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन राइट फॉर दिस गिवन सीरीज ak प्लस 1 माइनस ak इज नॉट कांस्टेंट. सो ये जो सीक्वेंस है उसके लिए हमारा दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है. तो ये जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो इन दिस एग्जांपल वी हैव टूक द सीक्वेंस 3 प्लस रूट 2, देन 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो हम उसके नेक्स्ट जो फ्यू टर्म्स है वो हम निकाल सकते हैं. सो यहाँ हम 3 नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे. तो पहले चेक करते हैं कि गिवन जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट फर्स्ट टर्म a1 दैट इज 3. ना नेक्स्ट a2 is equal to 3 plus root 2. Similarly, we will write third term a3 is equal to 3 plus 2 root 2. Now next है जो a4 is equal to 3 plus 3 root 2. ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि ये जो टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं. तो हम जाते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ, दैट इज ak प्लस 1 माइनस ak. सो यहाँ हम लिखेंगे a2 माइनस a1 जो पहले दो टर्म्स है. तो a2 माइनस a1 जो है वो है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3. हमें पता है ये प्लस 3 माइनस 3 है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें डिफरेंस मिलेगा रूट 2. नाउ नेक्स्ट वन हम लिखेंगे a3 माइनस a2. सो a3 जो टर्म है हमारा है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 जो हमारा टर्म है वो है 3 प्लस रूट 2. तो यहाँ भी हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस. सो 3 कैंसिल हो गया और इन दोनों में जो डिफरेंस है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये क्या हो गया, माइनस साइन की वजह से इसका भी साइन होने वाला है माइनस. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप हमें लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस
√2 और इसका आंसर आ जाएगा √2 बिकॉज 2 √2 माइनस √2 यहाँ जो होता है 1 सो √2 कॉमन आ गया और देयरफॉर 2 माइनस 1 √2 रह गया। सो अगेन सेम नेक्स्ट टर्म के लिए निकालेंगे a4 माइनस a3। सो हमारा a4 जो टर्म है वो है 3 प्लस 3 √2 माइनस a3 दैट इज 3 प्लस 2 √2। अगेन एज वी आर डन फॉर द प्रीवियस पार्ट, this plus 3 minus 3 cancel, then we will take difference of these terms. Okay, so see 3 √2 minus 2 √2 that is equal to √2. Now if you will see this √2 for this difference, this √2 for this difference, and again here √2. So here if you will observe, so ak plus 1 minus ak means two consecutive term के बिटवीन जो डिफरेंस है वो यहाँ कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू √2 विच इज कांस्टेंट। एंड ये जो है ये ak प्लस 1 माइनस ak जो है इट इज नथिंग बट इक्वल टू d, एंड d अगर कांस्टेंट हो गया किसी सीक्वेंस में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बिटवीन के जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो गया, तो हम उस गिवन सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ √2 मिल गया जो डिफरेंस है, तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्यू टर्म्स निकाल सकते हैं। सो वी विल गो टू दैट नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि हमें d मिल गया है √2, अब हमें निकालना है, ये था हमारा a1 a2 a3 a4। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म जो है हमारा होगा a5। सो हम a5 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे a4 प्लस d। ये फॉर्मूला कैसे आ गया, हमने देखा था कि a2 माइनस a1 अगर d है तो अगर हमने इस a1 को शिफ्ट कर दिया तो हमें मिल जाएगा कि a2 इज इक्वल टू d प्लस a1 और a1 प्लस d। सो इन दिस वे वी कैन अगेन कैलकुलेट फॉर नेक्स्ट फ्यू टर्म्स। सो a5 हमें मिल जाएगा a4 की हेल्प से, सो हम निकालेंगे a5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 √2 जो कि है हमारा a4 प्लस d है हमारा √2। सो 3 ऐसे ही रह जाएगा, हमें ऐड करना है ये दोनों टर्म को। सो यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस 4 √2, ये हमारा मिल गया यहाँ a5। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे a6। सो a6 कैसे मिलेगा, a5 प्लस d। वेरी इजी है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे टर्म्स निकालना है वो समझ में आ गया तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, वेरी इजी है ये पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो a5 हमने यहाँ फाइंड कर दिया है, ये देखो हमारा a5 है। सो हम लिखेंगे 3 प्लस 4 √2 प्लस √2। सो हम यहाँ ये टर्म्स ऐड करेंगे, सो 3 कांस्टेंट टर्म है, ये रूट के टर्म्स ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 √2। सो इन दिस वे हमने फाइंड कर दिया a6। सिमिलरली वी कैन फाइंड a7। सो a7 इज इक्वल टू a6 प्लस d। सो a6 हमें मिल गया है यहाँ, ये है हमारा a6 3 प्लस 5 √2। So here we will write 3 plus 5 √2 and then we will add our difference that is √2। ये ऐड करना है हमें, 3 कांस्टेंट टर्म है, सो 3 ऐसे लिखेंगे 3 प्लस एंड इनका एडिशन हो गया हमें 6 √2 से हमें a7 जो मिल गया है 3 प्लस 6 √2। So in this way you can solve examples related to arithmetic progression. You can check the given sequences are arithmetic progression or not. You can find next few terms if the given sequence is an arithmetic progression. So this is all about an arithmetic progression. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट अगर आपको वीडियो किसी लेसन पे, इंपॉर्टेंट लेसन पे देखना चाहते हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।